Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining us in this new year. This is the first episode of 2022, and we are joined today by Mr. Nakash Abbasi from Germany. Nakash, he's an expert in AI and Internet of Things. He's been with the Fraunhofer Institute of Solar Energy Systems as a research engineer, also worked with Arrow Electronics as a solutions architect, presently with Synex as a solutions architect, and also a co-founder and chief technology officer of a new startup called Dost with the other co-founders from Spain, I believe. Assalamu alaikum, Nakar Saab, how are you doing? Assalamualaikum तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया. Thank you very much Mm, for inviting me. that's Really happy to be here and same looking here, my forward to friend. the conversation. So your co-founders are from Spain, am I right? That's what you told me. Yes, 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 yes. जी, बिल्कुल. So, Nakar, how's it going in Germany? What are you doing there? I actually am living here for like almost 11 years now. I did my master's in power engineering. Mm-hmm. Back in Pakistan, I studied in industrial electronics from IEEE, mostly automation and control theory, these type of things. But I got really interested in renewable energies, Mm-hmm. so I decided that I would, go for a master's. So I came to Germany, did my master's, and for like 5 years I was a researcher in the area of renewable energies, in particular energy storage, power electronics, Mm-hmm. and then I switched career to AI and IoT, Mm-hmm. which you mentioned as well in the introduction. Mm-hmm. So yeah, at the moment I am involved in these topics Mm-hmm. quite actively. Mm-hmm. Uh, so So, it yeah. so what's this? I know there's a lot of buzz around artificial intelligence and IoT. There's a lot of work going on in Europe and the US. But in countries like emerging markets like Pakistan, it's still a buzzword. There's not much happening. तो ये AI और IoT for the larger audience ये होता क्या है ये? तो हम शुरू करते हैं मेरे ख्याल से आईओटी से. जैसे कि हम्म. नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बेसिकली आप करते क्या हैं, यू 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 कलेक्ट डेटा बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंसर, हम्म. and based on that data you generate some insights, and based on those insights you do some action. So in a nutshell, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईओटी आती है. फॉर एग्जांपल, इमेजिन करें कि आपके पास हम बड़ा बड़ा कॉमन यूज केस है. लिफ्ट है एक बिल्डिंग की. अमूमन क्या होता है, लिफ्ट ख़राब हुई, डाउन टाइम आया, मेंटेनेंस की वजह से इफ़ेक्ट किया. अब कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि आपने ऑलरेडी वहाँ सेंसर्स इम्प्लीमेंट किए हैं उस लिफ्ट में, जो आपको ऑलरेडी इन ड्यू टाइम वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन और इस तरह की इंफॉर्मेशन के थ्रू ये बता देते हैं कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ फेलियर. देन यू डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, राइट? सो या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और फिर आप उसको मेंटेन करते हैं. अब एआई और आईओटी का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है? ऑब्वियसली दे टू आर डिफरेंट फील्ड्स देमसेल्फ, बट दोनों का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनेबलर है कनेक्टिविटी के अलावा, वो है डेटा. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विदाउट डेटा यू कैन नॉट जनरेट इनसाइट्स, राइट? एंड सेम गोज फॉर एआई. एआई इन जनरल काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. ऑब्वियसली आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑन अ वेरी हाई लेवल, लेकिन उसमें ये है कि इमेजिन करें कि आप कोई भी टिपिकल एक्टिविटी करते हैं जो हमने ओवर द इयर्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखा है. एक मैं बहुत कॉमन एग्जांपल यूज़ करता हूँ इसको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल तैमूर साहब घर से बाहर निकलने लगे हैं. उन्होंने देखा कि बाहर क्लाउड्स हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि बारिश होने लगी है. तो इट्स हाईली लाइकली कि आप छतरी ले लेंगे साथ, कि बारिश ऊपर ना पड़े.
हुआ ये है बेसिकली कि ओवर द इयर्स आपने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा के अंदर से कुछ पैटर्न्स आपने देखे हैं, उन पैटर्न्स की बेस पे आपने लर्न किया है कि जब भी क्लाउड हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आई शुड टेक एन अम्ब्रेला विद मी। तो ये जो डेटा के थ्रू आप इनसाइट्स गैदर करते हो, पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हो और उनकी बेस पे डिसीजंस लेते हो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एआई। So, um, why IoT and AI projects? Why are they so complex? I mean, a lot of work is going on in the sector. I mean, big tech companies are doing it, like the cloud computing platforms like AWS, IBM, Microsoft, and all those people. They are working, doing a lots of work on AI and IoT and mm, why is it still so complex? When do you think is it going to go mainstream? Um, Actually, it depends on about which region you are speaking about, but nevertheless, if you read some of A generic view basically. a generic view, so if you just read some of the reports, for example, there is a really good report. I believe it's quarterly from Microsoft Mm-hmm. called IoT Signals, Mm-hmm. and I remember some stats from there that on average a typical IoT project takes almost 1 year. Mm-hmm. And usually, what happens in organizations, there are a lot of changes that can happen in 1 year. You never know, things like these kind of pandemics can happen, which can put a lot of constraint on the budgets. Mm-hmm. So, from the idea to the prototype to the pilot and then to the project, the typical lifespan of a typical IoT project at the moment is usually around 1 year. Mm-hmm. In some regions, it's 14 months, and in some regions, it's like 10 months, but average is like 12. Mm-hmm. And the reason behind this is like there's a shift towards OT versus IT. So they both operated separately in their own domains, and now there is gradually we see there is this sort of overlap Mm-hmm. that is sort of IoT. Mm-hmm. So there are a lot of things like you don't have the right equipment or resources within the organization. So resource training, externally companies or consultancies coming in, SIs, ISVs. Mm-hmm. For the audience, SI is system integrator, ISV independent software vendor. So Mm-hmm. these coming in to help, and do these kind of projects. Then they are often policy decisions. Mm-hmm. For example, Germany is notorious in these things. Like still, a lot of companies are SMBs, and usually they are very sensitive, or let's just say strict about their data. Mm-hmm. So they don't like their data to go outside. So this whole enablement through the cloud side is also, it's not just the technology thing, Mm-hmm. but it's also the mindset, right? Right. And then the connectivity. For example, if we talk about some parts of the world, there we still struggle. In Mm-hmm. Pakistan, we are lucky. Like we really celebrate this. I've read somewhere like we have crossed 100 million mobile users, and Yeah. which is a huge thing for a developing country like ours. Mm-hmm. So, but not every part of the world is in the same area Mm-hmm. or in the same domain. So it's a combination of several things, as I said. But in summary, it's not just only a technology challenge. It's also a policy challenge. It has to do with the enablement within the organization, how open that organization is in terms of data. And as you were mentioning, some of the cloud vendors, the likes of IBM, AWS, Microsoft Azure, Google, they all are actively working and bringing in every quarter. Like you have to be up to date all the time. Like I operate in domain, I sell their technologies, and I have to be like all the time up to date with whatever new is coming, Mm-hmm. because the things are changing in such a rapid pace. And then we already see these things like 5G and other type of connective networks, and Yeah. Sigfox and the LoRa and so on. Mm-hmm. Now, interestingly, you mentioned something. It's good that you are in tune to some of the stats coming out of Pakistan.
If we look at it in that context, Pakistan has crossed over 100 million internet users, and most of it is on mobile. And there's a, s- a little, to some extent, a little degree of hype around 5G as well. Some companies have been trying it out, and you get to see on social media posts of internet speeds of 500 gigs and all that kind of stuff, right? In certain areas of Pakistan. So when all of this talk is happening, and with such a large user base of the population going on the internet, for a country like Pakistan, for somebody, a layman like myself, right, and or for any other person for that matter, do you think this technology of artificial intelligence and IoT is going to make a difference? Because in Pakistan, uh, I think the biggest use case of IoT is probably an air conditioning device, right? A split air conditioner, and you use IoT tech on it to control the air conditioning system to some extent. But if you look at it in a larger spectrum of things, right? If you look at it, Mhm. take a bird's eye view of the whole population, how do you think this technology is going to affect or benefit the population of a country like Pakistan or Bangladesh or India? That's a really good question. So as maybe listeners have already noticed that we are talking about IoT and AI in the same sentence again and again, because we have reached at a point where, like, they are usually going hand in hand. Mm-hmm. Because going back to my point of like data and enablement, and it's pattern recognition, decision making, actions, and so on. Mm-hmm. So let's drill down a bit in terms of what are the typical use cases, right? So the Let me typical interrupt use you here. cases. Let me interrupt you here. Please talk about this in the respect of improving lives of laymen, because a lot of Yeah, even exactly. 10, Yeah, yeah. 15 years down the road, a lot of people wouldn't understand what AI is all about, you know? Yeah, no, it makes sense. I mean, a lot of us, we use AI in everyday life and we don't even know, but Yeah, that's a separate conversation, right? yeah. So in the context of Pakistan, what I was about to say is, like, we can take few of the use cases which are very common use cases of these technologies and see Mm-hmm. how they are applicable in Pakistan. Mm-hmm. So let's start with the first one, because you mentioned about air conditioning, right? Yeah. So one of the and I'm coming from the background of like renewable energies and energy. Yeah. So one of the very important topic is called demand side management. Mm-hmm. Is like, you don't just focus on generation, but you also focus on how much you are consuming, right? Mm-hmm. So there is a lot of work that has been done which falls under the umbrella of building automation. Mm-hmm. And in the building automation, obviously you use all kind of sensors to collect the data Mm-hmm. to make that as a smart building, or it's the buzzword typical we often hear is home automation, but Mm-hmm. uh, it becomes really meaningful when you're talking about buildings Mm-hmm. where thousands of people are working, and even if you save 1% of energy, that's a really valuable Yeah. thing. So this is one avenue which is applicable regardless if you are in Pakistan or if you are in any other country in the world. Mm-hmm. The other, particularly for Pakistan, because Pakistan essentially is an agriculture country, and we are very Yeah. lucky to be in that sense very agriculturally rich landscape. So there is a lot of possibility there in that area, that how can we use you know smart aggregation solutions by the combination of sensors, Mm-hmm. you know uh, and again, as we all are aware, that um, how much the rainfall and these kind of things impact us Mm-hmm. in terms of shortage and floods. So Mm-hmm. that's another avenue which can be explored with IoT in Pakistan particularly. And
and most importantly smart cities, because we see how unfortunately in the recent years the big cities, we both are from Karachi, so we know like how much Karachi has been affected with the whole ये जो हमारी ट्रैफिक की सिचुएशन है, Mhm. और फिर जो स्मोक Mhm. और ये सारी चीज़ें हैं, जो एयर पोल्यूशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि जहाँ पे हमें फोकस और बड़ा इजीली हम कर सकते हैं. आई नो फ्यू पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग some really good stuff Mhm. in that area in Pakistan as well, because आई थिंक हमारे केस में ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है, बट एक जनरल अवेयरनेस भी है. Mhm. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को शायद पता भी ना हो कि हम कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर में वहाँ पे Mhm. गुजार रहे हैं अपना टाइम, कराची में फॉर एग्जांपल. Yeah. तो अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी, जैसे आपने कहा कि अब तो है ना हर किसी के पास इंटरनेट, Mhm. तो एक ओपन पोर्टल हो जहाँ हर कोई जाके देख सके भाई गुलशन इकबाल का जो लेट से हमारी पॉल्यूशन लेवल इतना है तो ये, और फिर वो एक जनरल अवेयरनेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है चीज़. तो ये मेरे ख्याल से 3 एरियाज हैं जहाँ हम बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से देखें तो हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, I think एग्रीकल्चर में, I think जनरली there's स्मार्ट lots सिटीज़ more में और area to बिल्डिंग. add here. I think there may be जी सर. another area to add here, right? From my very limited knowledge of these things, uh, the healthcare space, health tech, right? Where medical treatment can be made possible with this technology, right? Where you have already we've started hearing about news from developed countries where remote surgeries have even been performed, and that is बिल्कुल बिल्कुल that बिल्कुल. of course falls under the ambit of IoT and AI and all of those things. Now, you mentioned something very interesting about the agriculture space. So I think you should be spending more time. I mean, Nakash should be spending more time in Pakistan, because there's a lot of work stuff going on in in the agri tech space over here, and AI technology can actually do wonders here. I know for a fact one or two startups, they are into it, but they haven't come for they're not mainstream just as yet. हम्म. लेकिन उस पे काम जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत जो है हो रहा है, तो आप वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और यहाँ आ जाएं. ठीक है. इसमें इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं जो कि बहुत ही क्योंकि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, हम्म. कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रेजुअली हम्म. जो इनेबलर्स होते हैं ना, टिपिकल इनेबलर्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, या. इस तरह की टेक्नोलॉजीज को मेन स्ट्रीम लाने के लिए, हम्म. वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गए हैं. हम्म. अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि हम खाली अकेले नहीं हैं इसमें. हम्म. हार्डवेयर के हवाले से अभी भी हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, और वो खाली हम नहीं हैं, वो बहुत से मुल्क हैं हम्म. उस रीजन में. हम्म. लेकिन सॉफ्टवेयर के हवाले से फॉर एग्जांपल जो पेमेंट के सिलसिले हैं, जो हमने बात की इंटरनेट यूजर्स की, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस डायरेक्शन में. तो अगेन एंड ऑफ द डे ये सारा एक इकोसिस्टम है ना. या. अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंस फिनटेक वाली साइड पे पूरा वो मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है, हम्म. तो आप जितना भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टाइप एप्लीकेशंस बना लें, हम्म. मिडिल मैन टू द फार्मर टू द हुएवर लाइक एंड यूजर कनेक्शन, हम्म. दे ऑल नीड दोज इनेबलर्स. हम्म. तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी फॉलो करता रहता हूँ न्यूज़, तो बहुत प्रॉमिसिंग दिख रही हैं चीज़ें, जिस तरह वो इनेबलर्स हम देख रहे हैं ग्रेजुअली आ रहे हैं हाँ, पाकिस्तान में इन फिनटेक चीज़ों में को भी और. बहुत काम है. जी फिनटेक में भी बिल्कुल. there's a lot of stuff going on. अच्छा, तो Nakash, what about because IoT involves a lot of process automation is involved with all of these things. So why is this even in the developed world, why is this process automation thing so complicated, right? And where do you think
all of this is heading? मतलब, what are the key specifics to look out for? तो इस हवाले से जो टिपिकल लफ्ज यूज हो रहा है, पहले हम इसको इन जनरल कह देते थे प्रोसेस ऑटोमेशन। Mhm. अब हम उसको अक्सर इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं या हाइपर ऑटोमेशन कहते हैं। Okay. अच्छा, जैसे हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे थे इनेबलर्स की ना, Mhm. तो एआई की जो सब फील्ड्स हैं उसमें एक फील्ड है डीप लर्निंग। Mhm. हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो क्या है, लेकिन हुआ ये कि जब आप 10-12 साल 15 साल पीछे जाते हैं, 20 साल पहले, Mhm. तो आपने ये लफ्ज़ बहुत कम सुना होगा, एकेडमिक लेवल पे सुना होगा। ये वो हुआ ये कि ओवर द इयर्स हमने अ, बहुत ही तेज़ी से तरक्की की। अपनी कंप्यूटेशनल जो पावर होती है, रिसोर्स, ठीक है, जो चिप पावर की बात कर रहा हूँ, Mhm. हार्डवेयर के हवाले से आपने ऑलरेडी देखा होगा। आई एम श्योर कि अगर आप 15 साल पहले जाएं तो जो क्लाउड के हवाले से मार्केट थी वो बहुत डिफरेंट है जो अब है। तो वो जो इनेबलर्स हैं जो ग्रेजुअली कंप्यूटेशन के हवाले से, Right. उसने हमें ये अलाउ किया कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करके, और अब आप किसी भी अ, ऐसी फील्ड में देखते हैं जहाँ पे रिमोटली किसी भी किस्म की पॉसिबिलिटी है एआई को यूज़ करने की, तो वो एक्सटेंसिवली होना शुरू हो गई। आपने हेल्थ केयर की मिसाल दी थी खुद, राइट, Mhm. कि एकदम से अब हम कंपेयर अगर करें तो बहुत तेज़ी से हम एक्सेलरेट करके, बाय द वे उसके पीछे भी एक फील्ड है एआई की, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो आपने वो रिबोट्स वाली एक एग्जांपल दी थी ना, कि आप रिमोट सर्जरी हो रही है रिबोट्स के थ्रू हो रही है, इस तरह की चीज़ें, Mhm. तो उसके में भी इन्वॉल्वमेंट है डीप लर्निंग इन चीज़ों की। तो उसकी वजह क्या थी कि वो हमारे पास ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने ये इनेबल किया। Right. अच्छा, जो प्रोसेस ऑटोमेशन इन जनरल है वो क्या है कि आपका ऑलरेडी पता होता है कि प्रोसेस डिफाइन है, आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं। Mhm. फॉर एग्जांपल, तैमूर साहब को किसी की ईमेल आती है, और वो उस ईमेल को लेट से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देते हैं, कोई फिल्टर लगा के, रूल लगा के, और अगर सब्जेक्ट में ये लिखा है तो इसको इस फोल्डर में पुश कर दो। ये एक आपने टिपिकल आपका प्रोसेस है, उसको आपने ऑटोमेट कर दिया। इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन या हाइपर ऑटोमेशन जो साइड है वो ये है कि आप एआई के थ्रू पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करते हो। Mhm. जो मैंने आपको इनिशियल एक डेफिनेशन दी थी कि आप वो पैटर्न्स डिटेक्ट करते हो, और उन पैटर्न्स की बेस पे ऑप्टिमाइजेशंस करते हो। Mhm. तो ऑलरेडी दुनिया में अब ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर रही हैं। अगेन यू हैव टू सी स्पेक्ट्रम ना, कि कुछ ऐसी हैं कि जो आपको टूल्स प्रोवाइड करती हैं कि आप वो चीज़ें कर सकें, और Right. कुछ ऐसी हैं कि वो ये करती हैं कि अच्छा आप को हम लेट से प्लग एंड प्ले सोल्यूशन देते हैं। Mhm. तो उसमें क्या है कि लेट से आपका एक टिपिकल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आपकी एक एक एंटरप्राइज है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर प्रॉब्ली बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें कहीं ना कहीं गुंजाइश है ऑप्टिमाइजेशन की। Mhm. तो वो डेटा माइन करके, उस डेटा को लेके, उन प्रोसेसेस को एआई के थ्रू उन पैटर्न्स को समझ के, और फिर ऐसी स्ट्रेटजीज रेकमेंड करना, और अगर पॉसिबिलिटी है तो उनको इम्प्लीमेंट करना, कि आप अपने प्रोसेसेस को और बेहतर कर सको, और ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा फायदे क्रिएट कर सको। तो ये जो डायरेक्शन है, ये हम इस तरफ अब जा रहे हैं। ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ये पाकिस्तान में भी आएगी। Mhm. आई वुडंट बी सरप्राइज, लेकिन अभी आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, बी Right. इट स्मार्ट सिटी वाली जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी हमारे यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बहुत ज़्यादा एआई एट द एज पे काम हो रहा है कि आप अब कंप्यूटर विजन के थ्रू आप इतने ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि इट्स वेरी स्ट्रेंज समटाइम्स कि ऐसी चीज़ें ना इम्प्लीमेंट की जाएं, क्योंकि दे कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑल दीज थिंग्स। Some telecom companies are actually doing some work on it as well, on these smart cities. हम्म। Huawei is very much active अच्छा। in Pakistan. I've actually been fortunate enough to work on one of their projects, on the smart city projects, अच्छा। as a strategist. That हम्म। was a couple of years back, before the pandemic actually. So, खैर, moving on, Nakash,
You're also working on a startup. You're a co-founder, you're CTO of दोस्त. ये दोस्त है क्या? किससे दोस्ती कर रहे हैं आप लोग? What does it do? What's it all about? अच्छा, असल में इसका बैकग्राउंड ये है तैमूर साहब कि अभी हम बात ही कर रहे थे हम्म, इसी टॉपिक पे, राइट, कि ये जो हाइपर ऑटोमेशन है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है, हम्म, तो इसमें अगेन फिर वही वाला सिलसिला आ जाता है हम्म, कि जो बड़ी इंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन बड़ी जो इंटरप्राइजेज होती हैं वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं कि वो पूरे डिपार्टमेंट्स बिठा सकती हैं, पूरी टीम्स बिठा सकती हैं। yeah, फिर जो बड़े वेंडर्स होते हैं, लाइक्स ऑफ जो माइक्रोसॉफ्ट्स हैं, जो इस तरह की कंपनीज हैं बड़ी, हम्म, वो उनको एक बिल्कुल टीयर 1 लेवल की सपोर्ट दे सकते हैं सारी चीज़। हम्म, अच्छा, मैं ये चीज़ ऑलरेडी करता हुआ आ रहा था हम्म, अपने बैकग्राउंड में भी, तो मैंने ये गैप, मेरे और मेरे को फाउंडर्स ने, हमने ये देखा कि ये एक एक गैप है जो मिड मार्केट है वहाँ पे, हम्म, कि कंपनीज जो हैं उनके पास या तो बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं या रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो ये चीज़ जो टिपिकल तरीका है उससे नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए होंगे जो उनके प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकें। हम्म, बट वो सॉल्यूशन ऐसे हैं कि जो ज़्यादा प्लग एंड प्ले स्टाइल हो, यानी कि right, उसमें आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज की या इवन इंटरनल रिसोर्सेज की और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट या चेंजेस ना करने पड़े आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हम्म, इसलिए वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड बेस्ड होना चाहिए। तो नाम हमने इसलिए रखा था कि जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के हवाले से ये बहुत कॉमन एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम्म, जो कि मे बी किसी हद तक सही भी है, डिपेंडिंग कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, हम्म, कि ऑटोमेशन जो है वो मेरी नौकरी ले लेगी। हम्म, ये बहुत कॉमन एक है बहुत सी जगहों पे। तो हमने नाम इसलिए रखा था कि भाई हम आपके लिए एक दोस्त बना रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा, जो आप मंडेन और रिपीटेटिव टास्क करते हैं हम्म, उनको वो आपके लिए कर देगा, ताकि आप फोकस कर सको उन चीज़ों पे जो मैटर करती हैं। right, तो हमने फिर शुरू किया फाइनेंशियल सेक्टर से, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में हमने देखा टू अवर ओन सरप्राइज कि अभी भी मिड लेवल, इवन यूरोप में यहाँ पे मिड लेवल पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी जो अकाउंटिंग का प्रोसेसेस वगैरह हैं उनको हाथों से ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सप्लायर वेंडर की इनवॉइस आती है हम्म, और उसको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो खुद ही देख के कोई बंदा बैठा हुआ डाल रहा होता है। हम्म, जैसे कि मैंने कहा, कनेक्टिंग बैक कि वो जो हम इतनी इम्प्रूवमेंट कर गए हैं डीप लर्निंग में, right, उसने इतने दरवाजे खोल दिए हैं पॉसिबिलिटीज के जो पहले पॉसिबल नहीं थे। हम्म, क्योंकि अगर आप 10 साल पहले जाएं तो आप 10 साल पहले ये नहीं सोच सकते थे, एकेडमिकली में भी यस, लेकिन इन जनरल बात हो रही है प्रोडक्शन की, राइट, कि हम्म, मैं एक बहुत ही अप्रिशिएटेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी डॉक्यूमेंट से जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है हम्म, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हम्म, ये पहले पॉसिबल नहीं था। अब लेकिन हम ऐसी सिचुएशन पे हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, हम्म, और वो फिर हमें ये चीज़ें अलाउ करती हैं कि हम ऐसे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें। तो तो हमारा इन जनरल विजन यही है कि हम उसको डोज डिजिटल ब्रेन कह रहे हैं, कि हम एक दिमाग बनाना चाहते हैं कि जिसके डिफरेंट सेंसर्स हों। टेक्स्ट एक सेंसर है, जैसे विजन एक सेंसर है, और वो मुख्तलिफ किस्म का डेटा ले वहाँ से, और उन डेटा को लेके उसमें से पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेसेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूव करे, और जो रिपीटेटिव और इस तरह की टास्क हैं उनको हेल्प करें, उनको ज़्यादा एफिशिएंटली करने में। right. अच्छा, I see that you've also been part of the uh, Y Combinator alternate in Spain called B Combinator, and हम्म। you've been through Microsoft for startups as well, right? तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई बिलीव यू आल्सो रेज समथिंग लाइक 700,000 or something close to $1 million in funding. जी सर, जो लास्ट इन टर्म्स ऑफ जो रेज किया उसमें प्री सीड राउंड था, और फिर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो स्टार्टअप्स है उसका आपको ये फायदा होता है कि आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, क्लाउड के क्रेडिट्स। तो एंड ऑफ द डे आप मनी इसीलिए रेज करते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी की कॉस्ट पे करनी होती है, तो जब वो पे हुई भी है तो ऑब्वियसली जी, उसकी अराउंड इतनी वैल्यू बनती है कि हमारे लिए 1 साल का एटलीस्ट बजट कवर्ड है। फिर उसकी जो ज़्यादा वैल्यू है वो दो और चीज़ों पे है। एक, उसकी वैल्यू ये है कि आपको वैलिडेशन मिल गई फ्रॉम द लाइक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कि जिन्होंने वैलिडेट किया आपके काम को और आपने जो किया है टेक्नोलॉजी को, कि भाई हाँ, आप जो कर रहे हो
वो कुछ है, अदरवाइज ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा वैल्यू की चीज़ आपको क्यों देंगे और इंडक्ट क्यों करेंगे उस प्रोग्राम में। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि इवेंचुअली जब आप आगे जाते हो तो आप एक बहुत बड़ी, यू कैन इमेजिन कि एक बहुत बड़ी मशीनरी है, एक बहुत बड़ा बीस्ट है। तो को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिल सकती है। जो इंक्यूबेशन का था हमारा, इंक्यूबेशन में बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी वो ये सीखी कि आपने एमवीपी बनाना कैसे है। हम बात बहुत करते हैं इस हवाले से कि आइडिया को एग्जीक्यूशन तक लेके जाना, लेकिन एआई, जब हम पूरे इस टॉक में इस पे बात करते हुए आ रहे हैं एआई और आईओटी में, एंड ऑफ द डे काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, स्पेशली जब आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कंसिडर करने पड़ेंगी। आपको एथिक्स कंसिडर करने पड़ेंगे, आपको डेटा इंटेग्रिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, आपको सिक्योरिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, आपको वेरिएबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी डेटा की। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहन में रखना। फिर जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ मैंने पर्सनली सीखी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट देख रहा था सारा, तो वो ये थी कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू बिल्ड एन एमवीपी। आप मतलब एवं ही रैंडमली नहीं शुरू कर देंगे कुछ। और जो मेरे उसमें जो लेसन्स हैं, अगर मुझे आप अलाउ करें, 2-3 जो बड़ी लेट से चीदा बातें हैं जो वर्थ मेंशनिंग है, उसमें एक ये है कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं डिज़ाइन थिंकिंग, राइट। तो हम लोग अक्सर ये चीज़ करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ही बिजनेस मॉडल कैनवस, और बिजनेस मॉडल कैनवस में जो 9 डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको फिल करना, वो जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर एजाइल मेथडोलॉजी और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत बोरिंग लगती हैं। आई बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैं पाकिस्तानी माइंडसेट समझता हूँ। बंदा यही कहता है, अबे क्या करवा रहे हो, मुझे पता है ना मेरा चैनल कौन है, मुझे पता है मेरी की एक्टिविटीज़ क्या हैं। बट बिलीव मी, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड दे आर वर्थ डूइंग। क्योंकि हम अभी भी बाज़ दफ़ा इतने अरसे के बाद, ऑलमोस्ट लाइक 9-10 महीने के बाद, हम अभी भी करते हैं, रिविजिट करते हैं उन चीज़ों को बिटवीन जो हम लोग हैं अपनी कंपनी के हवाले से भी, क्योंकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपने 6 महीने पहले जो चीज़ सोची थी वो वैलिडेशन के बाद किस तरह इम्प्रूव हुई। दूसरी एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई स्टार्टअप वाले लोग सुन रहे हैं जो किसी आइडिया पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए कि ये चीज़ हमेशा जहन में रखें कि अगर आप फुल टाइम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने आइडिया पे, प्रोडक्ट पे, और अगर आपको महीने से ज़्यादा लग रहा है उसको बनाने में, एमवीपी को, तो प्रॉब्ली वो एमवीपी नहीं है। जो एमवीपी होता है उसका जो नाम में है कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। तो आपने जैसे पिक्चर्स बहुत से लोगों ने देखी होगी, आई विश कि मैं उसको ब्रिंग अप कर सकूं अभी यहाँ पे। वो एक पिक्चर है कि आपने पहले 2 टायर लगाने हैं और दिखाना है कि अगर टायर लगेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। फिर आपने 2 टायर और लगाने हैं, फिर आपने ऊपर बॉडी रखनी है, पहले साइकिल बनेगी, फिर बाइक बनेगी, फिर क्या पता गाड़ी का इंजन लगे। एमवीपी की जर्नी जो है वो इस तरह होती है। आप ये नहीं करेंगे कि आपने आइडिया सोचो और पहले से ही गाड़ी बनाना शुरू कर दी। और ये चीज़ इसलिए आपने जहन में रखनी है कि जितनी जल्दी आप उसको मार्केट में लाओगे, इतनी जल्दी आप कस्टमर से वैलिडेशन लोगे, फीडबैक लोगे, उसकी बेस पे इम्प्रूव करोगे। और इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना उसमें और वो वाली अप्रोच लेना कि नहीं नहीं मेरा प्रोडक्ट जो है वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट करके, बहुत गलत है। क्योंकि अक्सर हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना, कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो आखिर में ये बिजनेस है। और बिजनेस की जो बहुत सिंपल सी बात है, आपने इस चीज़ को बेचना है। चाहे आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई एआई की प्रोडक्ट है या आप पकौड़े बना रहे हो, एंड ऑफ द डे आपने बेचने हैं इसको। तो जिसको बेचना है उससे तो पूछ लो कि वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, और अगर खरीदेगा तो किन टर्म्स पे खरीदेगा। हमारा जो अभी करंट स्टेट है, हम ऑलमोस्ट बीटा में हैं, हमारे 8 पेइंग कस्टमर्स हैं स्पेन में। हमारे प्रोडक्ट में सर एक चीज़ भी ऐसी नहीं है डेमो के अलावा, जो शुरू में डेमो बनाया था वो तो जाहिर है अट्रैक्ट करने के लिए बनाना था। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है हमारे इस स्टेज तक आके
जिसमें कोई भी चीज़ हमने खुद रैंडमली डिसाइड कर दी हो। हम्म, हर चीज़ उसमें फीडबैक के हिसाब से है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ERP पे जाएगा डेटा, हम्म, इनवॉइस से डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाएगा। हम्म, हम ऑब्वियसली कर सकते थे कि ऑलरेडी 3-4 डिसाइड करके बना देते, हमने नहीं किया। हमने शुरू में एक्सेल में दिखाया लोगों को। हम्म, हमने दिखाया भाई हम वहाँ तुम्हारी इनवॉइस से एक्सट्रैक्ट करके कहीं और पहुंचा सकते हैं डेटा। राइट, हमने फीडबैक लिए, हमने कोई 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज किए पोटेंशियल कस्टमर्स के। उसके बाद हमने डिसाइड किया अच्छा ये टॉप 3 है, अगर इनको हम कवर कर लेंगे तो हम कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक फ्रेमवर्क के थ्रू चलना, मेरा इरादा है पाकिस्तान अभी विजिट करूंगा मैं। आपसे बता रहा था मैं आपको, वैसे भी ऑफलाइन के इरादा है। मैं जब आऊंगा अभी पाकिस्तान तो कुछ इरादे हैं इस तरह के कि इस तरह की कुछ सेशंस करवाए जाएं कुछ दोस्तों के साथ मिलके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अक्सर मेरी होती रहती है जब बात दोस्तों से, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ज़रूरत है हमें कुछ फ्रेमवर्क्स को फॉलो करने की, चाहे हम उनसे एग्री करें ना करें, बट किसी वजह से हैं वो फ्रेमवर्क्स। हम्म, और मुझे ब- पर्सनली इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आई वुड लव टू शेयर दैट जर्नी विद पीपल बैक बहुत होम एज डीप वेल। ज़रूरत है, बहुत बहुत बेइंतहा ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने आप को चीता समझता है, तो वो सबके अंदर से चीता निकालना है। बिल्कुल और फ्रेमवर्क। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि उसमें मैं उसको मतलब अभी मैं टाइटल ही सोच रहा था कि उन सेशंस का टाइटल क्या हो, तो एक मेरे जहन में आ रहा था आइडिया टू प्रोडक्ट या इस तरह करके। हम्म, बट इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो कि आप आइडिया की वैलिडेशन। मतलब हमें याद है, मुझे याद है हमने एक एक्सरसाइज की थी तैमूर साहब के, जो जिसका टाइटल था समथिंग लाइक के टीम अलाइनमेंट मैप। हम्म, और उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जॉइंट कमिटमेंट्स क्या हैं। हम्म, तो हमें कोई 2 घंटे लगे आपस में डिस्कस करने में हम्म, कि यार मैं अपने आप को इस आइडिया से किस एंगल से और किस तरह कमिटेड समझता हूँ, हम्म, या मेरा जो को फाउंडर है वो कैसे समझता है। हम्म, क्योंकि आपको पता होगा, ऑब्वियसली आप इतने लोगों से बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, कि जो आर्ग्यूबली जो सबसे टॉप रीजन है किसी हम्म, स्टार्टअप के फेलियर का, वो टीम कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हमारे यहाँ इस तरह की एक्सरसाइज ही नहीं होती कि जो 2-3 लोग मिलके शुरू हो गए किसी आइडिया पे काम करना, हम्म, उन्होंने किस हद तक आप उनको 2 डिफरेंट कमरों में बिठा के पूछें कि विजन क्या है कंपनी का, हम्म, तो पता नहीं वो सेम विजन देंगे या नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। मैं कुछ आपने इनवाइट किए लोग, मैंने कुछ वीडियोस खुद देखी हैं, माशाल्लाह ऑल पावर टू देम, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं। तो मैं किसी भी हवाले से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आई आई ऑल्सो बिलीव व्हाट यू सेड कि हमारे यहाँ नीड है इन चीज़ों की, कि हम थोड़ा सा अपनी अप्रोच को स्ट्रक्चर करें, स्पेशली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से इन चीज़ों में। उसमें जो बेसिकली जो थॉट प्रोसेस उसके पीछे अप्लाई होता है वो आइडिया का नहीं होता, वो उसके पीछे जो है वो आइडिएशन का होता है, विच कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। और मेरे नज़दीक मैं बाज़ औक़ात लोगों से डिसएग्री भी करता हूँ, राइट, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू देयर ओपिनियन, ऑफ सो कोर्स, ऑफ कोर्स। राइट, राइट, सो इन माय ओपिनियन startups don't fail actually for one particular reason, right? जी There are bits and bobs of different things. There's of course disagreement between the team or the founders, and that is of course there. Then there are other things as well: lack of planning, lack of strategy, lack of research. All, in my opinion, all of these things, they actually fall into one basket. But I'm also a very strong advocate that if somebody comes up to me and says that a startup fails because they could not raise funding, I think startups don't fail because of funding, right? Startups, some people come up and say that their business failed because they ran out of money. I tell them, you don't run out of money, you actually ran out of your plan to work around with the money that you had, राइट। हम्म, सो बिल्कुल बिल्कुल। वो ही बात होगी, आप कान इधर से पकड़े या ऐसे आकर के पकड़े, राइट। तो वो ये है, खैर। we've gone over time, but I have to squeeze in one question here. Nakash, what's next for Dost? I mean, what are your plans? आप कह रहे हैं आप पाकिस्तान भी आएंगे, you plan on spending some time here, a couple of months maybe.
तो दोस्त का क्या आगे क्या लाएअमल है, आपका क्या प्लान है, मतलब विद रिगार्ड्स टू दिस टेक्नोलॉजी स्पेस दैट यू आर वर्किंग इन? अभी जैसे आपने मेंशन किया था फंडिंग के हवाले से भी, हम्म। तो हमने प्री सीड तो रेज किया है। जी। तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस इस अगले पूरे साल के लिए। जो मेजर अभी मकसद है प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना है। हम्म। प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के अलावा जो है स्पेन की मार्केट में, क्योंकि मेरे दोनों को फाउंडर स्पेन में हैं, और यूरोपियन मार्केट में अभी हम्म। करना है एक्सपेंड। लेकिन फ़ायदा ये है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर एज सर्विस वाला प्रोडक्ट है, हम्म। और यूज़ केस ऐसा है कि एप्लीकेबल है, स्केलेबल है। हम्म। मतलब इनवॉइसेस तो आपको पता है हर जगह, हम्म। अकाउंटिंग हर जगह है, ये सारी चीज़ें। तो अभी जो मेन है वो यही है कि पहले यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया, प्रोडक्ट को थोड़ा इम्प्रूव किया। हम्म। एज एंड मैं पाकिस्तान फॉर एग्जांपल आ रहा हूँ। पाकिस्तान में आऊँगा, मेरी ऑब्वियसली इरादा यही है कि एक्टिविटीज़ में इंगेज हूँ, इस तरह की कि जो लर्निंग्स अभी तक की हैं हम्म। उनको शेयर किया जा सके बाकी दोस्तों से जो वहाँ पे इस हवाले से काम कर रहे हैं, खासकर एआई। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, एज यू वुड हैव रियलाइज बाय नाउ, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एआई वाली साइड और इन चीज़ों पे। हम्म। तो इसके हवाले से But does it अ, have only to do with invoicing and नहीं accounting? नहीं 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 नहीं। Right. Okay. मैं खाली इस साल की बात कर रहा था। हमारे जो प्लान्स हैं इस वे बिगर देन दैट। मैंने जैसे बोला था, फॉर Mhm. एग्जांपल इनसाइट्स जनरेट करना, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक, मैं नाम नहीं ले सकता, एक पोटेंशियल कस्टमर है जो बहुत बड़ी फूड चेन है। Mhm. उनके लेट से अगर 6 फ्रेंचाइजेज हैं, छः Mhm. फ्रेंचाइजेज को हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जो फ्रेंचाइजेस का ओनर है उसको ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी जो 5वें नंबर वाली फ्रेंचाइज है वहाँ पे केचप ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है Mhm. बाकियों के मुकाबले में। तो जो विजन है वो ये है कि ऑब्वियसली आप ये सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हो, Mhm. बट मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ वो इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन वाले टॉपिक से ना, कि Mhm. किस तरह फिर उस डेटा के अंदर से वो इनसाइट्स जनरेट करना जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगी Mhm. अपने प्रोसेसेस को बेहतर बनाने में और ज़्यादा एफिशिएंट करने में। Right. Chale, that's great, Nakash. I think we'll call it a day over here. It was lovely talking to you. सेम है सर, सेम है, बहुत शुक्रिया Very आपका। insightful conversation. मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप जो लोग सुनेंगे उनको भी दे हैव सम learnings to take away from this. और इंशाल्लाह ताला when you are in Pakistan in Karachi, we are definitely love to meet up with you. Right, एक तो ज़रूर सर, ज़रूर, बिल्कुल। बहुत आउट बहुत शुक्रिया। आउट ऑफ दिस बॉक्स सेशंस हम एक्चुअली करते हैं, राइट। तो गपशप रहेगी इंशाल्लाह ताला। ज़रूर सर, ठीक ज़रूर है इंशाल्लाह। आकाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हैव सर। अ ग्रेट थैंक यू। वीकेंड अहेड देन। बेस्ट ऑफ लक यू विद टू योर सर। अचीव। यू टू, यू टू। थैंक यू। थैंक यू। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।